हमारे यहाँ बड़ी लंबी ट्रेडिशन है सोशोलॉजिकल थिंकिंग की। ये तो इट इज़ ए ट्रेजेडी कि हमारी यूनिवर्सिटियों के सोशोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे ग्रंथ तो पढ़ाते ही नहीं। तो यू सी देयर इन द वेस्ट दे डू नॉट हैव ए ट्रेडिशन ऑफ सोशोलॉजिकल थिंकिंग। पर हमारे यहाँ देखिए वेदांगों में ही कल्प, गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, ड्यूटीज ऑफ एन इंडिविजुअल and duties of the society. The eldest woman of the Hindu joint family, eldest woman, even when a widow, even if a widow, is the karta of the family. She is the head of the family. Head of the Hindu family, joint Hindu family, is the eldest woman. As I was a teacher in JNU, and there were about 20 years, 30 years, there was a phase, 70s to 90s, 60s onward basically, but 70s to 90s, when this was this theory, this feminist theory, was the most favored theory for research by girls. All the girl students in different, as you know, our academy, Indian Academy, has been an appendage of the American Academy ever since the PL 480 days. You see, when we got wheat and returned, the money was kept here, and that money was used by the Americans to send teachers from universities to America, USA, for refresher and orientation courses. That is to orient them to their way of thinking. And they sent all kinds of half-bright people for Fulbright fellowships. And those people came back, and even when they were readers, they were made heads of departments, because at that time an American degree was a very prestigious degree. Luckily it's no longer so, and they were made heads, which means those people, they shaped and controlled the curricula of various disciplines. And USEFI also gave book grants to all the universities in social sciences and humanities, free book out of that very money. So Indian universities from late 60s, then 70s, 80s, 90s, in fact was doing Anglo-American studies. The people who talk about this, they call it Eurocentrism. But it was not Eurocentrism. I wish it were Eurocentrism. Because if it were Eurocentrism, one would have read great French masters, Molière, let's say, for a comedy. We could have read German philosophers, and we would have read the sagas, the Nordic sagas. We didn't. It was not Eurocentrism in Indian universities. It was Anglo-American centrism. Anglo-American. So American Academy के हम appendage थे, and जो लोग पढ़ के आए थे, जो हेड थे, जिन्होंने सिलेबस बनाए, जिन्होंने रीडिंग लिस्ट बनाई, तो वो जो सीख के आते थे, उनका भी ऐसा होता था, एवरी थर्ड ईयर उनका ओरिएंटेशन होता था. मेरे कुछ टीचर थे, बड़े मेरे अच्छे टीचर थे, वो भी जाते थे, और हम आते उनसे पूछते जी इस बार क्या सीख के आए हो. तो एक स्टेज ऐसी थी कि अमेरिकन्स कहते थे फोनीम, तो हम भी कहते थे फोनीम. वो कहते थे मॉर्फीम, तो हम भी कहते थे मॉर्फीम. फिर उन्होंने कहा नहीं ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, हमने भी कहा ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर. फिर हम चॉम्स्की के पीछे पड़ गए, और चॉम्स्की के फ्रॉम सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स टू मिनिमलिस्ट ग्रामर. जो जो वहाँ होता रहा वो हमारी यूनिवर्सिटियों में
जो फैशन एकेडमिक वहाँ बना वो हमारी यूनिवर्सिटियों में बनता रहा। एक बार मेटाफर का फैशन चला तो सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में मेटाफर पे सेमिनार्स हुए। तो इसी प्रकार दैट इज़ थियरी, जिसको थियरी कहते हैं, थियरी दैट केम फ्रॉम अमेरिका, और हम लोग डेटा। सो इंडियन एकेडमी एंड अमेरिकन एकेडमी related as data theory, and that is the reason why we talk of the Indian mind as a subjugated mind, and not only subjugated mind but also translated mind and a translator's mind. हम लोग उन्हीं की थ्योरी को अनक्रिटिकली लेके उसको हम दिमाग में समझते हैं अपनी भाषा में, और फिर डेटा, इंडियन डेटा से हम प्रूव करते थे कि वो थ्योरी कितनी ठीक है। यू गेट द लॉजिक ऑफ द एकेडमिक्स। वी बोरो द थ्योरी अनक्रिटिकली and apply it to Indian data to show how powerful or how correct that theory is. This is the subjugation and subordination of mind, of which we have not got rid of even now, in spite of the NEP, because NEP, the two things that after great discussion and persuasion they agreed कि भारतीय के मातृभाषा में 5वीं क्लास तक शिक्षा दी जाएगी। अब देखिए 47 में there were only 5% of Indians who knew English. Was there any justification to make English the medium of education? बड़ी मोटी बात है। 5% को अंग्रेज़ी आती थी और आपने पूरी मीडियम ऑफ एजुकेशन अंग्रेज़ी बना दिया। सो वी इन फैक्ट वी फर्दर्ड देयर एजेंडा ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। एट लीस्ट द संस्कृत स्टडीज़ एंड इंडियन स्टडीज़ वर वेरी मच मोर prominent in very good universities like Calcutta, for example. But after 47, it all turned to, it took a left turn, and whatever was being done was gone. So theory came from America. They are the theory, we are the data, we were the data. बहुत theory आई उसमें से एक feminist theory भी है। अब आज इस वक्त हम शंकर सरन जी की हम रिक्वेस्ट को भूल भी जाएं, इस वक्त हम फेमिनिस्ट थ्योरी का डिस्कशन जो कर रहे हैं, जब बातचीत कर रहे हैं, इसकी क्या रेलेवेंस या इसकी क्या वैल्यू है। क्योंकि लाइक अदर थियरीज, क्योंकि वहाँ एक थियरी विद कैपिटल लेटर्स, theory was rejection of the humanist thinking and values. 19th century से पहले यूरोप में मतलब जो रनेसा में शिफ्ट हुआ, फ्रॉम the ontological shift from book मतलब बाइबल टू रीजन, epistemological shift from book to reason, मतलब साधन, ज्ञान का साधन किताब नहीं, तर्क, और ontological from God to man. बट रेनेसां पीरियड में, जिसमें बड़े पेंटर्स थे, अदर पेंटर्स थे, रेनेसां पीरियड में ह्यूमनिस्ट वैल्यूज़ थी, और लिटरेचर भी ह्यूमनिस्ट वैल्यूज़, काइंडनेस, मर्सी, लव, ये जिनको बाद में कार्ल मार्क्स ने बूर्जुआ वैल्यूज़ कहा। बूर्जुआ मतलब मिडिल क्लास की, जो एक्सप्लॉयट क्लास की वैल्यूज़ हैं। सो देयर वाज ह्यूमनिस्ट, द लिटरेचर, गोल ऑफ लिटरेचर was to propagate humanist culture and humanist values,
ये था. But the 18th century movement towards reason, age of reason, Bentham, Tom Paine, and Jeremy Bentham, and the entire European, thinking, reason का एज ऑफ एनलाइटनमेंट. और उसमें बड़ा क्लियर आर्ग्यूमेंट था कि वंस यू रिजेक्ट रिलीजन एंड ऑल दैट गोज विद रिलीजन, अब रिलीजन, अगर आप रिलीजन रिजेक्ट करो, हमारे यहाँ अगर आप रिलीजन रिजेक्ट करो तो आपकी सारी भक्ति पोइट्री रिजेक्ट हो जाती है. दया, धर्म, दान, है ना, क्षमा, ये सारी वैल्यूज खत्म हो जाती हैं. सो दे सेड वंस यू रिजेक्ट रीजन, once you reject religion, you will become free and you will develop, and there will be एक क्रिश्चियन सिविलाइजेशन में एक जो उनका जो एक ड्रीम है, एक उनका डर है और एक उनका सपना है. क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का डर है आर्मेगेडोन, कि बहुत ऐसा आएगा, ऐसा युद्ध आएगा या ऐसा वो फ्लड आएगा जैसे नोहा के टाइम आया था कि सब खत्म हो जाएगा. ये उनका डर है आर्मेगेडोन का. और उनका जो सपना है कि उससे रोकने के लिए सेकंड कमिंग, क्राइस्ट फिर आएगा, सेकंड कमिंग, ये उनका सपना है. दोनों ही दे आर एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइटी. अब इन चीज़ों को अगर आप रिजेक्ट कर दो इनको, और प्योर रीजन और तर्क, तब वो कहते थे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन विल प्रोग्रेस. बट इट एंडेड इन ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. मतलब इन वर्ल्ड वॉर 1, इन द जस्ट द ट्रेंच वॉरफेयर 5 लाख सोल्जर्स डाइड इन ट्रेंच वॉरफेयर. और दो में मिला के नियरली 1 करोड़ पीपल डाइड 2 वर्ल्ड वॉर्स में, एंड पीपल लॉस्ट फेथ. बट द पॉइंट इज इन दैट एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट, रिजेक्शन ऑफ ह्यूमनिस्ट वैल्यूज में द राइज ऑफ थियरी जो है, उसमें ये फेमिनिस्ट थियरी जो है, थियरीज है, मार्क्सिज्म है, मार्क्सिस्ट थियरी है, स्ट्रक्चरलिस्ट, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट, ये सारे जो आई थिंक स्टूडेंट्स आर ऑल फेमिलियर विद ऑल दीज, ये जो जितनी थियरी हैं, दे ऑल कम अंडर थियरी which is a rejection of Renaissance humanist values, and they are in fact flow from, or they borrow their vocabulary from Marxism. Marxism has leaked into these theories. Marxism में क्या था? देखिए 19th century में there were many एंटी-क्रिश्चियन रिलीजियस सिस्टम्स प्रपोज्ड. मतलब क्रिश्चियनिटी के खिलाफ क्यों? क्योंकि द राइज ऑफ साइंस, आर्कियोलॉजी वगैरह या ज़मीन खोदना, तो बाइबल में लिखा था दैट गॉड क्रिएटेड मैन ऑन ए संडे, दिस होल वर्ल्ड यूनिवर्स ऑन ए संडे इन 4004 BC. ये बाइबल में लिखा कि 4004 BC में संडे वाले दिन भगवान ने फुर्सत में बैठ के सारा यूनिवर्स बना दिया. अब जब ज़मीन खोदी तो उसमें से स्कल निकली जो 50,000 साल पुरानी है या 1 लाख साल पुरानी है. सो लॉस ऑफ फेथ इन क्रिश्चियनिटी, डेथ ऑफ गॉड कहते हैं वो, दे कॉल इट डेथ ऑफ गॉड. लॉस ऑफ फेथ इन क्रिश्चियनिटी and the consequential loss of ethics and loss of purpose of life. तो ये सात्र वगैरह, एलियनेशन, एग्जिस्टेंशलिज्म, के हम क्या हैं, हमारा पर्पस लाइफ में क्या है, तो ऑल दिस इट ऑल दिस फॉलोड. अब आई एम सॉरी, मैं ज़रा थोड़ा आर्गूमेंट बिल्ड कर रहा हूँ कि किस प्रकार ह्यूमनिस्ट वैल्यूज़ को रिजेक्शन ऑफ रिलीजन and the rise of theory which was inspired by materialist thought, which followed the rise of reason, materialist thought. And in that context I am saying 19th century Unitarianism, Presbyterianism, there were so many systems proposed which were kind of counterpoints to Christianity. Marxism
Marxism, which is supposed to reject religion, is itself a religion. And its structure, Marxism का, is the same as that of Abrahamic religions. जितने ये जो 3 Abrahamic religions हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये तीनों में दे आर एक ईश्वरवादी, वन गॉड, दैट गॉड इज फॉर्मलेस, निराकार, बट लॉजिकल फैलेसी है, गॉड, वन गॉड, फॉर्मलेस, निराकार, पर निर्गुण नहीं है, निर्गुण नहीं है. So this Spinoza saying in his essay on scripture, on interpreting scripture, that Hebraic God is an angry God. And because तीनों में एक ही गॉड है, फॉर्मलेस है, फिर भी आपस में लड़ते हैं, क्योंकि वन गॉड पर मेरा गॉड, आपका नहीं, क्योंकि मेरा गॉड एंग्री नहीं है, आपका गॉड एंग्री है, एट्रीब्यूट्स हैं. दिस ए फॉल्ट लाइन, that fault line in the conception of one formless God has led to the conflict between these 3 systems. अब तो जानते हैं जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में क्रूसेड से लेके अब तक, और ज्यूज़ के तो ये दोनों ही दुश्मन हैं. हमें 40-50 लाख ज्यूज़, 5 लाख ज्यूज़ फैक्ट्री लगा के 1940-45 में फैक्ट्रियाँ लगा के 5 लाख ज्यूज़ मार डाले. सो आपस में लड़ते हैं. नाउ रिजेक्शन ऑफ रिलीजन, promotion of reason, age of enlightenment, which will lead to second coming, beautiful life, it ended in a war and it ended in human destruction. Is this phase the theory, जो theory है सारी, inspired by reason? Now, why did I say Marxism is a religion like Judaism, Islam, Christianity? क्योंकि like them, there is a book, Das Kapital, there is a Messiah, Karl Marx, there is a priestly class, Comintern, पूरा जो उनका members of the Communist Party. और जिस तरह उन धर्मों में हेरेसी होती है कि अगर आप जो कहा गया है, वहाँ लिखा गया है, उसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो यू विल बी हेरेटिकल एंड यू विल बी पनिश्ड. वही मार्क्सिज्म में है. इवन ट्रॉट्स्की फॉर एग्जाम्पल, ट्रॉट्स्की जैसा ग्रेट माइंड, he was killed because he expressed disagreement with certain things. So in the same way Marxism also is a religion, but materialism and reason और ये theories में आया. इसमें क्या कि it led to questioning. The positive side perhaps was that people started asking questions that they were not asking earlier. Or the questions were there, but they were not asked. Maybe they were not asked. Now, one of the theory, feminist theory. Now, why are we talking of it today? I'm asking this question because ये अब ना exhaust हो गई है. This theory is now exhausted. मतलब जब ये आई, इसने कुछ अच्छा काम किया. It promoted consciousness about women's condition. It promoted consciousness, general collective consciousness of the society, and it certainly made people aware that they have to do something to give justice or equality or something. ये शुरू में every theory in the beginning it does some good, but as it proceeds, it becomes more and more, you can call it sophisticated, or it expands its domains and becomes more rigid and becomes more anti other ways of thinking. Hostile हो जाती है. और एक स्टेज आती है because इसमें कोई after all basically what is it? Basically it is a theory which says that women should be treated as equal, they should be treated with justice, and they should have freedom to be what they are and freedom to do what they want to do. Broadly, this is the essential part of feminist theory which nobody can disagree with. Nobody can disagree with. But
it is now, you know, it branched into so many things. You know, there जैसे इकोफेमिनिज्म है, ज्योग्राफी में भी, इकोनॉमिक्स में भी, पॉलिटिक्स में भी, you know, the woman's point of view. I mean, this point of view, it started interjecting into other disciplines also. उसका क्या हुआ कि it lost its identity, basic identity, and became widespread. पानी एक गिलास में तो इकट्ठा है, अगर जमीन पे फैला देंगे तो वो लेयर पतला हो जाता है, तो उसकी वो थिननेस हो गई, इतनी थिननेस हो गई कि इसकी अब कोई ज़्यादा इसकी कोई वैलिडिटी, अब कोई नई बात है नहीं। अब ये जब इन्हें भी देखा जाए तो अभी आजकल देयर इज न्यो फेमिनिज्म इज रीअसर्शन of feminine attributes of women, the realization that as women, as feminine beings, with qualities of a woman that are associated with a woman, they have more power than when they give them up and start acting or assuming masculine virtues or masculine qualities and all that. So that is neo feminism. It's one of the recent. So the realization कि जितनी पावर उनको as women समाज में या relationships में थी, they lose it. There is what is called, एक जगह कहा गया है, theory fatigue. मतलब लोग theory से ही थक गए। वो कहते यार theory तो ठीक है, पहले नॉवल तो पढ़ लो, पोएम तो पढ़ो, थेरी पढ़े जा रहे हैं। सो आजकल द डिपार्टमेंट्स ऑफ इंग्लिश, दे ओनली डू थेरी, दे डोंट रीड, बिकॉज लिटरेचर इज नॉट रेड एज लिटरेचर, इट इज रेड एज ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट समझते हो ना? क्यों पढ़ोगे चार्ल्स डिकन्स? क्योंकि हमें यूटिलिटेरियन फिलॉसफी समझनी है। हमारे यहाँ हमारी थिंकिंग में बड़ा क्लियर है काव्य शास्त्र कि भाई अगर आपने इंफॉर्मेशन अबाउट सोसाइटी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट सोसाइटी एंड अबाउट वर्क करना है तो यू रीड शास्त्र हैं, ट्रीटिसेस हैं, वो पढ़िए। काव्य, लिटरेचर, नॉट दैट लिटरेचर डज नॉट टीच यू, बट टीचिंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द आनंद, प्लेजर दैट लिटरेचर गिव्स यू। If you read a poem and enjoy it, you will automatically be educated also, in the sense कि आपकी feelings educate होंगी, feelings। अगर राइम ऑफ द एशियन मैन पढ़ेंगे, कुबला खान पढ़ेंगे, या कीट्स की आप ओड्स पढ़ेंगे, नाइटिंगेल, तो आपकी एक फीलिंग्स में एक रिफाइनमेंट, एक सेंसिटिविटी बढ़ती है। सो लर्निंग इज, प्लेटो के ज़माने से है कि लिटरेचर इज to teach through entertainment। सा रस ज्ञान देना है रस के साथ, तो ये तो पुराना चलता होता है। वेरी फ्यू पीपल नाउ रीड लिटरेचर एज लिटरेचर, बट दे रीड फॉर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। एम आई राइट जी? आपके सब यूनिवर्सिटियों में यही होता है, थ्योरी पढ़ाते हैं, थ्योरी ज़्यादा पढ़ाते हैं। अब उसमें से हमने फेमिनिस्ट थ्योरी, आज शंकर जी ने क्यों कहा कि फेमिनिस्ट थ्योरी, शंकर जी इज रिस्पॉन्सिबल। शंकर जी ने इसलिए कहा कि ये एक थ्योरी है जिसको लेके हमारी यूनिवर्सिटियों के सियाने प्रोफेसरों ने हिंदू समाज को बहुत बदनाम किया। अब बात समझ रहे हम क्यों बात कर रहे हैं? मतलब कि इस फेमिनिस्ट थ्योरी को लेके हमारे सियाने प्रोफेसर, अंग्रेजी पढ़े लिखे प्रोफेसर जो थे, उन्होंने हिंदू समाज को खूब बदनाम किया। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ, जब भी इंग्लैंड से या अमेरिका से कोई सोच, कोई विचार इंडिया में आया, तो उस विचार या सोच ने उस देश में तो बहुत अच्छा काम किया, जहाँ से आया अच्छा काम किया, पर यहाँ आके उन्होंने हिंदू समाज पे अटैक किया। जैसे 19वीं शताब्दी में लिबरलिज्म,
liberalism. Now, liberalism saved England from a revolution like French Revolution, reform by law. So, liberalism prevented French Revolution type of violence in England. पर लिबरलिज्म जब यहाँ आई और राजा राम मोहन रॉय के हाथ में आई, तो उन्होंने हिंदू समाज में इतनी गलतियाँ निकाली, उन्होंने नाम पे इतनी गलतियाँ निकाली। ये मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि वो तो वन गॉड पीपल थे और गॉड भी फॉर्मलेस है। ये तो बंदरों की पूजा करते हैं, ये पत्थरों की पूजा करते हैं, ये तो कहीं से भी पत्थर ले आते हैं उसकी पूजा करते हैं। फिर इनके यहाँ मतलब कि कोई किसी का अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी दूसरी शादी नहीं होती है। यहाँ फिर बच्चियाँ जो हैं वो विधवा हो जाती हैं, बड़ी छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। ये सारी बातें, और फंडामेंटली हिंदू रिलीजन को, हिंदू सिस्टम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैक किया गया। राजा राम मोहन रॉय जो कि संस्कृत का स्कॉलर था खुद, उसने लॉर्ड को चिट्ठी लिखी कि संस्कृत मत पढ़ाओ, क्योंकि संस्कृत में कोई ज्ञान नहीं है, आप हमें अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ। जब शिक्षा नीति पे इंग्लैंड में चर्चा हो रही थी, दो ग्रुप थे, एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट, कि शिक्षा इंडियन टाइप की होनी चाहिए, ये बोलने वाले अंग्रेज थे, और शिक्षा अंग्रेजी टाइप की होनी चाहिए, ये बोलने वाले हिंदुस्तानी थे, हमारे लोग थे। तो हमें किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही अपनी कब्र खोदते हैं बड़े आसानी से, है ना, खुद ही करते हैं। देन वी पे द प्राइस, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। बट देन राजा राम मोहन रॉय, you see, he criticized these things, but as I said, every theory when it comes, it does some good also. कम से कम लोगों का ध्यान तो गया इन चीज़ों की तरफ, कुछ फ़ायदा हुआ। पर उसके साथ जो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ हिंदू सिस्टम and the self-respect of the Hindu people, and it was undermined, and एक प्रकार की हीन भावना हिंदू लोगों में फैल गई, हीन भावना। They all attacked. Interestingly, from the beginning, they did not, those thinkers, they did not attack Islam. फेमिनिस्ट थ्योरी में भी जितने लोगों ने, हमारे प्रोफेसरों ने लिखा है, सब ने कहा कि हिंदू समाज में औरतों के साथ बड़ा धक्का होता है, इस्लाम पे कोई नहीं लिखता। पर अगर कोई मोटी अकल से भी देखेगा, मोटी अकल से भी, तो जितनी दुर्दशा उसमें है उतनी दुर्दशा हमारे में नहीं है। हमारे समाज में दुर्दशा उस प्रकार की है ही नहीं। ये थोड़ा बहुत जो हमारे समाज में विकृतियाँ आईं, वो 11वीं शताब्दी के बाद आई। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे चाइल्ड विडोज, बंगाल में बहुत ज़्यादा, बिकॉज व्हेन दे केम देयर, राजा राम मोहन राय वगैरह और उनका जो फॉलोअर थे, तो अंग्रेज़ों ने बंगाल में एक समाज में देखा कि 8-8, 9-9 साल की हिंदू लड़कियों की 65, 70 साल के जमींदारों के साथ शादी हो जाती थी। एक जमींदार के साथ 40 लड़कियों की शादी हो जाती थी, और वो 5-10 साल बाद मर जाता था, और वो 40 की 40 विडो हो जाती थी लड़कियां। कुछ तो उनके माँ बाप देख लेते थे, कुछ उस घर में उनकी देखभाल, ज़्यादा की एक्सप्लॉयटेशन होती थी, कुछ निकल जाती थी। उस समय में 19वीं सेंचुरी में वृंदावन में विधवा आश्रम बने पहली बार। वृंदावन में जो विधवा आश्रम है, उसका कारण क्या था? कारण में कोई नहीं गया। कारण ये था कि मुसलमान जमींदार जैसे ही कोई लड़की 9 साल की हिंदू लड़की होती थी, उसको जबरन उठा लेते थे।
इस चीज से बचने के लिए, लड़कियों को बचाने के लिए माँ बाप उसकी शादी किसी हिंदू जमींदार से कर देते थे। ये प्लीज, ये मैं खुद बना नहीं रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। ये हुआ, ये कारण था। अब ये सोशल ईवल तो हो गया, पर इसका कारण ये नहीं कि हिंदू समाज या हिंदू शास्त्र, धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि लड़की की इस उम्र में शादी कर दो और अगर वो विधवा हो जाए तो उसकी शादी नहीं होनी। इसका मैं आपको काउंटर एग्जाम्पल देता हूँ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 3rd सेंचुरी BC, ये तो बात बता रहा हूँ आपको 19वीं शताब्दी की, ये लड़कियों की जो बता रहा हूँ। 3rd सेंचुरी BC में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें 2 चैप्टर मैरिज पे हैं, मैरिज पे। मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने नहीं पढ़ा, आप हैरान हो जाएंगे सुन के जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो कहता है नई नई शादी होती है और अनफॉर्चुनेटली शादी होने के सडनली बाद, महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद किसी कारण से लड़के की डेथ हो जाती है। बहू घर आ गई है और लड़के की डेथ हो गई। तो देन, अब लिसन, दिस इज कौटिल्य। ही सेज दैट गर्ल नाउ विल बिकम द डॉटर ऑफ द फैमिली। अब वो बेटी हो जाएगी। द फादर इन लॉ is now the father of the girl and it is his duty to marry her off like a daughter. Or if the girl who is now a widow but now is the daughter, if she marries the boy that the father-in-law father chooses, then all istri dhan given to her by her father, by her husband and by her father-in-law in that first marriage, all that istri dhan will be given to her, plus now this father-in-law who is now the father, he will now give as father istri dhan to her. Can you imagine? Can you imagine, sir? And if she chooses to marry a boy of her choice, not father-in-law's choice, then what the husband gave, what her father gave, will be given to her. But what the father-in-law had given to her will not be given to her, but he now as father will give a share. पर जो as father-in-law दिया तो वो नहीं दिया जाएगा. The third choice the girl has, she may choose not to marry. Then she will stay till the last day of her life as the daughter, and all the brothers, all the men folk in the family, it will be their duty to look after her till her last day. अगर आप मेरी बात ये मानते हो कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैरिज के चैप्टर खोल के पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा प्रोग्रेसिव या अच्छा आपको किसी और सिस्टम में नहीं मिलेगा। अब ये था, इसलिए जब 19वीं शताब्दी बंगाल में ये हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि हमारा धर्मशास्त्र ना विडो री मैरिज नहीं अलाउ करता। विडो री मैरिज वो तो खुद कह रहा है, अर्थशास्त्र में कह रहा है कि दैट गर्ल हैज़ टू बी मैरिड, हैज़ टू बी मैरिड, यू सी। एंड कात्यायन इन धर्मसूत्र clearly says widow remarriage provides for widow. Not only that, हमारे यहाँ बड़ी लंबी ट्रेडिशन है सोशोलॉजिकल थिंकिंग की। ये तो इट इज़ ए ट्रेजेडी कि हमारी यूनिवर्सिटियों के सोशोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे ग्रंथ तो पढ़ाते ही नहीं। वो डरखाइम और वो, बिकॉज यू सी लुक द at least now after you can say after loss of faith in Christianity, आपको पता है यूरोप में आजकल चर्चेस बिक रहे हैं, चर्चेस, और उनको बिजनेसमैन खरीद के उनमें मॉल बना रहे हैं। या अरब मनी वाले लोग, मुसलमान लोग उनको खरीद के मॉस्क्स बना रहे हैं।
क्योंकि चर्च में कोई जाता ही नहीं. People have lost faith because of reason and science and all that. तो उस circumstances उनके, तो you see there they have in the West, they do not have a tradition of sociological thinking. पर हमारे यहाँ देखिए वेदांगों में ही कल्प, गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, ड्यूटीज ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ड्यूटीज ऑफ द सोसाइटी, पूरे क्रिया सूत्र श्रौत सूत्र हैं. और वो तो इतने दो ब्यूटीफुल वर्ड्स और देशानंद जी के, एक व्यक्ति का जो ड्यूटी है इंडिविजुअल की, अर्पण, समर्पण और तर्पण. यू सी इफ यू आर द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली, तो अर्पण, यू आर डिवोटेड टू द फैमिली. फैमिली इज द की ऑफ हिंदू सोसाइटी. इंडिविजुअल is the key to Western society. You see, that is the difference. Therefore, all the feminist attack that took place by our learned professors, it was to undermine the family. क्योंकि एक फेमिनिस्ट का, फेमिनिज्म में 4 वेव्स थी, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव. फिर वो वेव कॉन्सेप्ट पे ही वो आपस में लड़ने लगे कि वेव कोई नहीं है, ये तो एक लहर है, इकट्ठी चल रही है, लहरी है. और फिर थक गए उससे, थ्योरी फटीग हो गई उससे कि ज़्यादा ही बात कर ली, अब कोई और बात करते हैं, है ना. बट देन वन ऑफ द क्रेडो वाज, यू डोंट हैव टू मैरी टू हैव ए चाइल्ड. क्लियरली ये उनका, क्योंकि इंडिविजुअल सेंटर्ड है ना. एंड यू एज अ वुमन, यू आर द ओनर of your body. It's your body. You use it as you want. There is no social environment or social norm or anything. But the Hindu society, where family, देखिए, why is it important? Why is the Hindu society or Hindu family or why Hindu civilization? Because, again, a tested fact है. UNESCO has listed 46 human civilizations जो आज तक हुई हैं. उन 46 में सिर्फ हिंदू civilization has survived. All the 45 gone, disappeared. And Hindu civilization has not only survived, it has survived very, very hard times, adverse. And it has not only survived, it is still alive. Still alive. Alive in what sense? Our society is amenable, women का ले लीजिए, is amenable to reform by law. पर जब मैंने 2010 में लेक्चर दिया था तो मैंने I got a book of judicial cases, judgments in women cases from 2000 to 2010, 2000 से 2010 तक 170 cases dealing with women's rights, जिनमें with every judgment the disabilities that the Hindu women were suffering were reduced, taken away. एक मुझे अभी भी बड़ी रिमार्केबल याद है कि एक हस्बैंड ने केस फाइल किया कि मेरी वाइफ की नौकरी दूसरे शहर में लग गई है और वो नौकरी वहाँ जाके करना चाहती है. शी वांट्स टू डू द जॉब देयर, बट it is a violation of my right as a husband कि वो यहाँ मुझे छोड़ के वहाँ चली जाए. So she should not. And at that point of time, the judge supported the husband. But suo moto, the Supreme Court took up the case and gave a judgment that the wife has every right to take the job if she is competent and qualified wherever she is, and it does not amount to violation of domestic rights. This is reform by law. शाह बानो केस तो आपको याद ही है. 40-42 साल के बाद वाइफ को डाइवोर्स कर दिया, उसे 250 रुपये देने हैं, वो भी नहीं दिए. वो भी कोर्ट ने कहा दो और लोकसभा से पास करा के. तो दैट इज अ सोसाइटी which is not amenable to reform by law.
But our society is amenable to reform by law. Not only that, we have had a long range of social reformers, thinkers. वो ज़्यादा हमारे यहाँ ये जो संत महात्मा होते हैं वही रिफॉर्मर्स होते हैं. अगर कोई पोलिटिसाइज्ड सोशल रिफॉर्मर बैठ के कहे कि मैं बताता हूँ आपको कैसे करना चाहिए, या आपको तो भरा पड़ा है हिंदुस्तान आजकल, है ना, कितने थिंकर हैं, बिगिनिंग विद राहुल गांधी, कि भी ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो. बहुत थिंकर्स हैं, बड़े ज़्यादा हैं, पर उनसे पॉलिटिशियन से सोसाइटी रिफॉर्म नहीं होती, ना ही लॉ से होती है. लॉ से थोड़ा असर पड़ता है, कोई केस करेगा तो तब होगा ना. अब जैसे ट्रिपल तलाक ख़त्म हो गया, अगर किसी को ट्रिपल तलाक दिया जाए, जब तक वो पुलिस में जाके FIR नहीं करेगी तो उसको नहीं मिलेगा ना, राइट. पर जो संतों महात्माओं का जो रिफॉर्म होता है वो परमिएट करता है सोसाइटी को, परमिएट करता है, उसमें रहता है, तो वो भी ट्रेडिशन रही है. सो हम फेमिनिस्ट थियोरी इसलिए ले रहे हैं, इसलिए नहीं कि ये बड़ी अलाइव थियोरी है, ये जेड हो गई है, देयर इज थियोरी फटीग, ये इतनी फैल गई है कि, और इसमें आप देयर इज ऑल्सो एंटी फेमिनिस्ट थियोरी नाउ, एंटी फेमिनिस्ट विद इन फेमिनिस्ट, neo feminist, and all that. There is a widespread realization that in the West, India में तो शुरू से ही the Indian women were always divided between what was their very strong culture, क्योंकि वेस्ट की तो वो that cultural strength, societal strength was dissipated ना, but in India it remained. So Indian women remained divided between that and the new idea. Indian women have been facing and quite successfully facing these challenges. That split that they experienced, what ultimately has prevailed is the Indian culture which has prevailed, and not the die-hard feminist theory. It has not prevailed. अब जितनी वर्किंग लेडीज़ हैं यहाँ भी बैठी हैं, हमारी बेटियाँ कितनी बैठी हैं, इनसे पूछ लीजिए. कई I have interviewed girls of the age of 35 working in corporate houses, getting salaries of $1.5 lakh, coming for a school teacher's job. And I used to ask कि तुम ये सब छोड़ के यहाँ क्यों, कि जी मेरा बच्चा है छोटा, I cannot look after her. You see, so that वो जो बायोसोशल रोल है, बायोलॉजिकल रोल है, that a woman can alone give birth to a child, और सोशल रोल है कि मदर जो है, मदर से बड़ा टीचर कोई नहीं होता, वो पूरी शेप करती है. हमारे इतिहास में आपको अगर मैं पूछूं शिवाजी के पिता का नाम, आधों को नहीं पता होगा. शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई सब जानते हैं. कौन था, सतकर्णी नासिक का राजा, जिसने 78 AD में सीथियंस को हराया सिंध नदी के किनारे, महाराष्ट्रियन था. उसके फादर का नाम किसी को नहीं पता, बट ही इज नोन एज देवकी पुत्र सतकर्णी. उसकी माँ का नाम पता है. और फेमिनिस्ट बताए जाते थे, हमारी लड़कियों को बताते थे कि जी पिता का नाम होता है, माँ का नाम क्यों नहीं होता. हमारे यहाँ तो माँ का नाम खूब होता है. छांदोग्य में सत्यकाम जवाल की कहानी है. सत्यकाम एज ए बॉय गोज टू द मोस्ट वेल नोन टीचर ऑफ हिज टाइम, गौतम ऋषि, एंड ही सेज कि मैं आपके पास पढ़ना चाहता हूँ, शिष्य बनना चाहता हूँ. मैंने कहा मोस्ट वेलकम बेटा, कौन से घर से हो, पिता कौन है. नॉर्मल क्वेश्चन, ये नहीं कि एंटी फेमिनिस्ट क्वेश्चन है कि पिता का नाम पूछ रहा है, माँ का. नोबडी विल, मैं किसी बार को मेरी माँ का नाम पूछे और पिता का नाम पूछे, आई विल ऑब्जेक्ट टू इट. गौतम ये थोड़ा कहेगा तेरी माँ का नाम क्या है, वो तो यही कहेगा ना कि किसके बेटे हो बेटा, पिता का नाम क्या नाम है तुम्हारे पिता का. तो उसने कहा जी मैं पूछ के बताऊंगा माँ को कल. ही गोज टू हिज मदर जबला, एंड जबला सेज बेटा
I have served so many men in my life. I cannot tell you who your father is, but I, Jabala, am your mother. Go and tell this to your teacher. And he goes next day to Gautam, tells this, and Gautam says, what a great truth teller your mother is. Your mother is. And you are even greater. You have not changed even a word of what she said. क्योंकि विमेन में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि इफ यू पुश देम दे विल ब्लंटली ब्लर्ट द वर्स्ट ट्रूथ दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट. उनमें इतनी स्ट्रेंथ होती है. बट जो लड़का है उसे शर्म आएगी बताने में कि मेरी माँ ने ये कहा. बट ही सेड अक्षरशः एंड ही सेड यू विल बी माई स्टूडेंट फ्रॉम टुडे. वही बात में नचिकेता का. यू सी सच नैरेटिव्स आर देयर. तो यहाँ पूछते थे कि माँ का नाम क्यों नहीं हो सकता. यहाँ तो माँ के नाम से लोग जानते हैं. बिकॉज एक पैट्रियार्की बहुत बड़ा शब्द था. पैट्रियार्की है ना. और ये मनु की बात सुनाते हैं कि मनु ने कहा कि पहले पिता, फिर पति और फिर बेटा. और औरत तो हर वक्त गुलाम रहती है. गुलाम नहीं, रक्षा, जिसे आपके रक्षा बंधन है. रक्षा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे समाज में. डिफेंस, इवन धर्म रक्षा, धर्म रक्षक परंपरा, धर्म की रक्षा की भी परंपरा है. वन आफ्टर द अदर यू कैन नेम पीपल जिन्होंने शस्त्र से या शास्त्र से धर्म की रक्षा की. और रक्षाबंधन ही सिर्फ नहीं होता. जब यज्ञ होता है तो पुरोहित यजमान को रखड़ी कलेवा बांधता है उसकी रक्षा करने के लिए. और रक्षा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट. ये रक्षा है, प्रोटेक्शन. बट बाय एंड लार्ज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज फिनिश्ड. एंड इसमें फेमिनिस्ट थ्योरी का बहुत बड़ा हाथ है. फेमिनिस्ट थ्योरी का वेस्ट में बहुत बड़ा. पर एक चीज़ आपको मैं ध्यान में रखनी चाहिए. ये थ्योरी ओरिजिनेट वेस्ट में हुई. वेस्ट में ये ओरिजिनेट क्यों हुई? वाई? बिकॉज इन द वेस्टर्न हिस्ट्री एंड द वेस्टर्न हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी women completely lost their identity. First of all, there is the unwed mother, Virgin Mary. Unwed mother, Virgin Mary. तो वो जो रोल होता है माँ का, उस तरह का वो नहीं है. There is no sister role in the Western tradition. कितना लिटरेचर पढ़ लीजिए, सिस्टर रोल है ही नहीं. एक ग्रीक प्ले था एंटीगनी, बहुत ग्रेट प्ले है. एंटीगनी, उसके जो अडॉप्टेड फादर हैं, भाई को रिवोल्ट करता है, वो मर जाता है. और वो जो राजा कहता है कि इसका मैं क्रियाकर्म नहीं करने दूंगा. पर एंटीगनी जो सिस्टर है कहती है, इफ माई हस्बैंड डाइज आई कैन गेट अनदर हस्बैंड, बट ए ब्रदर बॉर्न ऑफ द सेम वूम्ब, when he dies I cannot get another brother. I must and I will cremate him. पर उसके बाद कोई सिस्टर रोल नहीं है, मदर रोल नहीं है, सिस्टर रोल नहीं है. ये नहीं. इसलिए और फिर आते आते जब मैरिज की इंस्टीट्यूशन विद द वीकनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, जब मैरिज की इंस्टीट्यूशन भी टूट गई, तो द वुमन इन द वेस्ट इज रिड्यूस्ड टू बेबी डॉल. Marilyn Monroe, at that image, baby doll. Now in India, identity, अस्मिता का भी बड़ा प्रकोप है ना. बहुत लोग लड़ते हैं अस्मिता के ऊपर आजकल. आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी. अब मैं कहता हूँ कि इंडियन सिस्टम में, हमारे सिस्टम में, हमारी आइडेंटिटी तो बहुत बड़ी थी. हम ब्रह्म का अंश हैं, ईच वन ऑफ अस. इससे ज़्यादा आइडेंटिटी क्या हो सकती है? पर हमने ये मॉडर्न थ्योरी पढ़ ली, एथनोग्राफी पढ़ ली, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ ली. तो अब हमें कहने लगे जी मैं तो कपूर हूँ, खत्री हूँ, हाफसाबाद का हूँ, फलानी. मैं तो इतना ब्रह्म का अंश की बजाय इतना सा रह गया है ना. और अब मेरा झगड़ा शुरू हो गया इसके साथ. ये दूसरे गांव का है, ये तीसरे गांव का है. सो द आइडेंटिटी क्वेश्चन
what was the identity of a woman given the Western history, Western sociology, and absence of sociological thinking? None. Here, 9th century BC, there is a text यास्क का टेक्स्ट है निरुक्त. उसमें वो कहता है, ही इज टॉकिंग अबाउट 33 कोटियाँ, देवताओं की 33 कोटि. कोटि को हमारे पढ़े लिखे मतलब अनपढ़ अंग्रेज, जो अंग्रेजी पढ़ जाते हैं ना जी, वो अनपढ़ हो जाते हैं. वो कोटि को कहते हैं करोड़, कि देखो जी 33 करोड़ देवता. कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, कोटि इज कैटेगरी. 33 categories of gods, and he says these 33 categories are different names for the functions of the same power. जो एनर्जी प्रिंसिपल है विच इन्फॉर्म्स ऑल द यूनिवर्स, उसके जो फंक्शंस हैं उनके नाम हैं. वो वायु है, जल है, अग्नि है, वरुण है, ये सारे दीज आर डिफरेंट पावर्स, फोर्सेस ऑफ द सेम लाइफ प्रिंसिपल, पूरे यूनिवर्स को जो इन्फॉर्म करता है. ही गिव्स एन एग्जाम्पल, यास्क का एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है. वो कहते हैं घर में एक लड़की होती है, उसका एक तो अपना नाम होता है, उसका एक नाम नहीं होता. लड़की का, छोटी लड़की का उस घर में कई नाम होते हैं. कोई कहते हैं बब्बू, कोई कहता है बब्बी, कोई कहता है बन्नी, कोई कहता है गुड़िया, कोई कहता है कुछ, कई नाम होते हैं ना. और प्लस वो किसी की मासी, किसी की बहन, किसी की भांजी, किसी की भतीजी, किसी की पोती, किसी की दोती. दिस इज द एग्जाम्पल ही गिव्स. शी हैज ए नेटवर्क ऑफ 23. This 23 network of relationships gives her identity. ये हमें भी इस वक्त भी, कपिल कपूर इज नॉट जस्ट कपिल कपूर. मैं किसी का भाई, किसी का मैं बड़ा भाई, किसी का छोटा, किसी का ताऊ, किसी का चाचा, किसी का फूफा. कितने हैं, कितनी आइडेंटिटी है. वी कैनॉट गेट अवे फ्रॉम इट इन आवर सोसाइटी. हमारे यहाँ एलियनेशन हो ही नहीं सकती. हम लोग तो चाहते हैं कि हम एलियनेट हों, हमें तो रिश्तेदारी नहीं छोड़ती. पर शहरों में आके हम सुखी हो गए हैं कि हम कुत्ते को पाल लेते हैं पर माँ बाप को नहीं रखते, है ना. अब शहरों में आके हमने अंग्रेजियत सीख ली है, हम अपने न्यूक्लियर फैमिली, जिसको कहते हैं ना न्यूक्लियर फैमिली, वो बना ली. बट जो हमारा जो बेसिक सिस्टम जॉइंट फैमिली वाला अब भी है, शहर में भी मिलेगा आपको, यहाँ भी मिलेगा. पर आप 70% ऑफ इंडिया में यू विल गेट इट, बिकॉज इंडिया नाउ इज 2 इंडियाज, 2 नेशंस. एक ये मेट्रोपॉलिटन इंग्लिश एजुकेटेड, एक दूसरा. तो ये अच्छा, मैं सिर्फ आई टेल यू कि फेमिनिस्ट थ्योरी ने हमारी किन किन चीज़ों की चर्चा की, और सबके जवाब हैं, पर अभी टाइम जवाब का नहीं है. मैं आपको वो गिना देता हूँ सारे, कि क्या वो किन किन चीज़ों पे. देखिए, पूछते हैं कि फाइडेलिटी मैरिज में औरतों के लिए क्यों. ये गलत है कि ये औरतों के लिए. शास्त्र पढ़िए ध्यान से. इट इज़, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा, एक पत्नी व्रतधारी. वाई राम इज कॉल्ड मर्यादा पुरुषोत्तम. दूसरा, राइट टू डाइवोर्स, इट इज ग्रांटेड इन आवर शास्त्र टू women. Not only divorce, if a husband goes away after saying for trade or something and can come back after 1 year, does not come for 5 years, woman has the right to abandon him. If a husband becomes a traitor to the country, the woman can abandon him. You see, हमारी श्रुति समृद्धियों में, शास्त्रों में लिखा हुआ डाइवोर्स का. थर्ड, पढ़ने नहीं देते थे ये औरतों को, टोटली रॉन्ग. महाभारत का वन पर्व पढ़िए, और द्रौपदी का युधिष्ठिर के साथ जो संवाद है, उसके एंड पे युधिष्ठिर कहता है, तूने ये सब सीखा कहाँ से. लॉजिक वॉजिक वो पूरा बताती है कैसे सीखा. और इक्वल राइट. हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं, कान्य कुब्जा एक शब्द चलता है, ब्रह्मवादिनी. कान्य कुब्जा के लड़कियां
जो इतना अध्ययन करती थी कि पीठ से टेढ़ी हो जाती थी। तो ये टोटली रॉन्ग एजुकेशन। तीसरा, वेद नहीं पढ़ने देते थे। ये तो आजकल बहुत लोग कहते हैं जी दलितों को नहीं पढ़ने देते थे, तो मैं तो आजकल तो 200 रुपये में मिलते हैं, चारों पढ़ लो। पर आज तो ब्राह्मण भी नहीं पढ़ते, क्योंकि वो समझ ही नहीं आते। उनको समझने के लिए पहले 14 विद्याएं आनी चाहिए। तो इसलिए ये भी गलत है। देखिए, पढ़ना वर्जित नहीं था, पढ़ कोई भी सकता है। किसी का गुरु कोई, आप ये हमारे यहाँ जो मेले होते हैं कुंभ के, वहाँ पे प्रवचन होते हैं, वहाँ ओपन ऑडियंस होती है, वहाँ बैठ के आप चाहे कठोपनिषद सीखो, ऋग्वेद सुन लो। वो अध्ययन मना नहीं है, पर रिचुअल इनंसिएशन, कोई रिचुअल, कोई यज्ञ हो रहा है, उसमें जो उसका इनंसिएशन है मंत्रों का, वो लेडीज़ को अलाउड इसलिए नहीं था कि उसके लिए 13 साल की ट्रेनिंग होती थी। और जो लड़कियों का जो अपना बायो सोशल जो रोल होता है, इतना समय वो पढ़ाने में लगा नहीं सकती थी पढ़ने में। इसलिए रिचुअल में वो भी अब खत्म हो गया है। महाराष्ट्र में नाउ पीपल आर इनवाइटिंग विमेन प्रीस्ट टू कंडक्ट मैरिजेस। अब लेडीज़ ने वहाँ अपने बना लिए हैं। दिस ऑल्सो शोज यू दैट द हिंदू सोसाइटी इज डायनामिक एंड इज इवॉल्विंग। अब विमेन बनाए उन्होंने। और माय फ्रेंड्स टेल मी कि आप लोग शादियों में वो लेडी प्रीस्ट को बुलाते हैं, क्योंकि वो पूरे मंत्र पढ़ती हैं, ठीक ढंग से पढ़ती हैं। तो दिस वे दैट why is it that women are being preferred these days for jobs? Girls are being preferred. Why is it that girls are topping various disciplines in universities? Huh? And now the girls have started, flying fighter planes. So women today, our girls today in India, Hindu girls today, are the most vibrant section of the Indian society. Most vibrant section. In every field they are the most vibrant. कन्यादान कहते हैं कि क्या लड़की कोई दान देने वाली थी? उनको दान का शब्द ही अर्थ पता। T.S. एलियट ददाती दान हाँ, 3 द बोलता है एलियट, उसको समझ आती है बात कि सबसे प्रिय वस्तु, नचिकेता को फादर ने कहा, मैंने अपनी सारी वस्तुएं, प्रिय वस्तुएं दान कर दी हैं। तो उसने कहा नहीं, तुमने अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान नहीं की। किसको? मैं तुम्हारा बेटा हूं, तूने मेरा दान नहीं। तो दान, जो तुम्हारी प्रिय वस्तु है उसको किसी और को दे देना, उससे बड़ी तो सैक्रिफाइस नहीं है कोई। एंड यू हैव टू आस्क ए फादर। आपके महाभारत में लिखा है कि ए मैन हु डज नॉट लुक आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स और हु डज नॉट मैरी ऑफ हिज डॉटर इज बाउंड टू सफर। ये ड्यूटी है हमारे सोशल समाज में। एक बाप की ड्यूटी होती है बेटी की शादी करना, माँ बाप की सेवा करना। अब करें ना करें, वो तो कितनी करें कितनी ना करें, दैट इज अनदर मैटर। पर शास्त्र हमारे ये कहते हैं हमेशा, इन ऑल सोसाइटीज, व्हाट इज द आइडियल एंड व्हाट इज द प्रैक्टिस, उसमें थोड़ा गैप होता है। बट यू जज ए सोसाइटी बाई what percentage of people are leading their life according to that ideal, large number on लोग। तो कन्यादान पे करते हैं। फिर कहते हैं कि जी लड़कियों को लास्ट राइट्स परफॉर्म करने में हक नहीं है। टोटली रॉन्ग। आपने तो अखबारों में पढ़ा होगा, एक जगह गुजरात में किसी आदमी की सिर्फ 4 बेटियां थी। वो 4 बेटियां तो उसकी अपने फादर की अर्थी भी उठा के लेके गई। ये अखबार में आया था। They carried the body of their father and they cremated him also. ये भी गलत है। Then they said कि वो वेदों का तो हो गया, वो फादर उसके अधीन रहती हैं। लड़कियों का उपनयन नहीं होता, गलत है। जो लड़कियां ब्रह्मवादिनी, जो ये निर्णय ले लेती थी कि मुझे तो अब ज्ञान अर्जन करना है, और ज्ञान अर्जन चाहे आदमी हो या औरत, उनको असेटिक संन्यास लेना होता था, तो वो उनका उपनयन होता था, उनका भी उपनयन होता था। ये भी दिस ऑन ट्रू कि नहीं होता। इस तरह बहुत और चीज़ें हैं। डॉरी, अब डॉरी नहीं है, स्त्री धन है। और मैं एक सबसे बड़ा बताऊं, लेटेस्ट
अब वो लॉ बन गया है जो हमारा कस्टमरी लॉ था. बाय द वे, द इंडियन लीगल सिस्टम is formalization of customary law which is based on the Parashar Samhita, latest क्या है कि the eldest woman of the Hindu joint family, eldest woman, even if a widow is the karta of the family, she is the head of the family, head of the Hindu family, joint Hindu family is the eldest woman. तो यहाँ ये जो पेट्रियार्की, फादर इज द हेड, फादर साहब, बाय लॉ 2013 में लॉ बन गया है, कर्ता कहते हैं उसे, कर्ता. द एल्डेस्ट वुमन इन द हिंदू जॉइंट फैमिली इवन इफ ए विडो इज द कर्ता. मतलब उसके बगैर कोई डिसीजन हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता. सती, बाय द वे, द फर्स्ट सती became sati when her husband was alive. You know, तो सती ये नहीं है कि वो, एंड मैं ला नहीं पाया, टाइम नहीं मुझे मिला. मैंने सबमिशन किया था उसमें कोर्ट में एक बार 5 पेज सती के ऊपर ऋग्वेद से. ऋग्वेद में हिम है कि जब वो एक बहुत, उसी वो इतना प्यार करती थी कि शी वेंट एंड ले डाउन ऑन द पायर. So the elder male members, you know, they tell her, no, you have to get up. You have to give birth to sons. See, इस सब चीज़ में क्या है? She will be married again and she has to get up. उसका सती नहीं होना है. तो ये हमारे बारे में भ्रांतियाँ जो फेमिनिस्ट थेरिस्ट ने फैलाई हिंदू समाज के बारे में, इस कारण शंकर शरण जी का ये मुझे कहना कि आप इस पे बोलो, जबकि ये थेरी तो अब ख़त्म हो चुकी है, फेडेड है. थेरी फटीग हो चुकी है. फिर भी इस कारण क्योंकि हुआ, तो मैंने कहा शायद थोड़ा यूज़फुल होगा इसकी बातचीत करना. ये क्या कि प्रातः स्मरणीय पंचकन्या, ये 5 जो लेडीज़ हैं, इनका सुबह उठ के श्रद्धा से नाम लो. और 5 ही वो हैं जिन्होंने सोशल नॉर्म को वायलेट किया. तारा, मंदोदरी, अहल्या, कुंती. दिस इज टॉलरेंस. ये नहीं है कि रवि रंजन जी नाराज हो गए तो कोई गल नहीं. हाँ, ऑल मैरिड वुमेन एंड दे वायलेटेड द लॉ. बट लुक एट द हिंदू सोसाइटी, समाज. इसी तरह राधा कृष्ण का रिलेशनशिप निषिद्ध प्रेम था, पर सोसाइटी ने उसको इतना सेक्रेड बना दिया कि राधे राधे, अब कृष्ण कहने की जरूरत ही नहीं है, राधे राधे में ही द होल थिंग एंडेड. तो एनीवेज, चलिए, थैंक यू वेरी मच. नमस्कार जी, बड़ी कृपा.